I'm making this one out of great concern, and the intention is to add some peace and guide Indian men precisely. First of all, great thanks to Deshbhakt. They have made a very brilliant video about Gwar Sarai. This is a phenomena hurting Indians more than ever. And certain parts of this video I will keep it in Hindi, certain part I will keep and I will translate that for the audience who is not comfortable with Hindi, either Indians or people outside India. First of all, this attitude of harassing and like being around women is like in a way that you want to gain some sort of traction, और दिस बदतमीज़ी कि इफ़ यू वांट सम कि ना आपको कुछ चाहिए उससे या फिर आपको उसको, ये बहुत बड़ी बदमाशी है, प्लीज़ मत करिए. दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट बिग प्रॉब्लम. हो क्या रहा है कि आपको ग्रोइंग अप आपको एक तरीके से ट्रेन किया गया है, नॉट इंटेंशनली, बट जैसे कि बचपन से होता है ना कि एक वे भी कि आप इस लड़कियों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती हैं और सेक्सुअलिटी को एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आप लोग उस चीज़ को एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेस करके बैठे हैं जो जिसका एक्सप्लोजन ऐसी यहाँ जिसका एक्सप्लोजन इन फॉर्म्स में आता है. एंड ऑब्वियसली हमारे समाज की टॉक्सिसिटीज़ ऑलरेडी हैं. Translations, you have been trained, you not intentionally perhaps, but maybe even intentionally, in a manner that the repression of that energy coming out has been very has been coming out from a place of derogation, and that is why this blocked energy is coming out in this very manner. Because at one point there has been no training कि सेक्सुअलिटी देखनी कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉर्न एक ऐसी बीमारी है, इवन ये सॉफ्ट पॉर्न और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सम काइंड ऑफ दीज एप्स आर कमिंग इन, ये एक ऐसी डिस्टॉर्टेड वर्जन प्रेजेंट करते हैं लाइफ का, जिसकी वजह से आपके दिमाग में आइडिया बने पड़ रहे हैं जो कि सही नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक आपने कहीं किसी देश का वीडियो देखा, उसमें एक फेक सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, उसमें आपने एक नियंत्रण कंजम्पशन से आपने एक धारणा बना ली कि मे बी एक्चुअली ईजी होता है. फिर जब आपको वीज़ा लगता है, आप वहाँ जाते हैं किसी कंट्री में, फिर आप ये काम कांड करते हैं. भाई रियलिटी और पॉर्न में बहुत डिफरेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करिए कि अपने आप को थोड़ा इस मामले में रिपेयर करा जाए. अगेन आई वुड ट्रांसलेट इट फॉर द ऑडियंस हु डजंट कम्युनिकेट और comprehend Hindi. Your patterns of using excessive pornographic movies have embedded ideas, because all those fictitious programs have embedded in you the idea that certain story is would be playing in, and overuse of these scenarios playing out, you judge women in a certain way, especially when you get a visa, you get a stamp outside it. First of all, don't do that stuff. Reality is very different. बाहर भी ऐसा कल्चर, काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा कल्चर है कि आप लाइक इंटीमेट नहीं होते. इंटीमेसी काफ़ी एक सीक्रेट है एवरीवेयर. डोंट थिंक कि वुमेन, बिकॉज यू हैव सम डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट कमिंग आउट ऑफ पोर्नोग्राफी डजंट मीन मैन वुमेन आर लाइक दैट. पहले ये नहीं करना होता. सेकेंड थिंग, आपको रिपेयर करने के लिए बता रहा हूँ ये सारी स्टेप्स. ये मोर वुमेन लाइक इस वीडियो का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट,
वुमेन के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना। सेकंड, मेन को एक अंदर से प्यूरिफाइड और एक अंदर से क्लैरिटी और एम्पावरमेंट देना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आपको मेन और वुमेन दोनों को की गई है। द ओनली पर्पस टू दिस वीडियो आर twofold in manner. One is to attempt to create a safe environment for women all throughout the world, and for men to be uplifted and empowered so as to come out of this stupid conditioning. First of all, I hope that point is clear. You behaving in this manner would create, first of all, that thing was never meant to be, and you behaving in this manner with a lady would like make an impression which she would talk 2.5x, which is natural. Even I would do it, and anybody will do it. 2.5x gets communicated 3.5x internally, and then it goes on to 7x. Eventually, repetitions of these things, because people keep on doing that nonsense stuff. पहली बात, I am not questioning the government, I am not questioning anybody else, I am questioning people. Why are you so glorified about, why are you so hassled about the idea of sex, or you're so much mesmerized about the idea of sexual? It's not such a great thing as well. The things like these, ये आपके कल्चर में इंट्रोड्यूस हुआ। एक तो कल्चर भी नहीं बोलूँगा मैं इसे मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ वैदिक कल्चर। दिस इज टोटल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ वैदिक कल्चर, दिस इज नॉट इवन कल्चर फॉर, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसरिप्रेजेंटेशन आपके अंदर, और ये दिस इज़ अ पॉइंट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, एल्डरलीज ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको भी लाइक ये एल्डरलीज के लिए भी ये पॉइंट है, आपने कल्चर का मिस इंटरप्रिटेशन खींच रखा है फॉर सम रीज़न, और डिप्रेसिटी उस सोसाइटी में बहुत थी। और ये जो कल्चर का भी, उस जो वैदिक सनातन है उसका भी बहुत बड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन है ऑल ऑफ दिस, और उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। एक पॉइंट बता देता हूँ, सेक्सुअल एनर्जी से ही आदमी की ग्रोथ भी होती है, बॉडी की भी, माइंड की भी, पैसे की भी। वही एनर्जी है जो ऊपर जाती है। Just let me relay one more information. Sexual energy is the only thing that grows body, mind, and दिख रहा है, like it's visible on the bodies and the minds, and also the wealth. And ये बात चाणक्य नीति में भी mentioned है कि anybody behaving like that with women गरीबी फैलाएगा, and if a large section of society is behaving like that with women, तो पूरे जगह पे गरीबी फैलनी शुरू हो जाएगी, और हो रहा है ये। Translation: it is indeed mentioned in Chanakya Niti that anybody assaulting or behaving heinously with women, no matter what their attitude is, you don't need to get into that debate right now. Any kind of heinous action towards a woman would spread massive poverty to this person, and if this large chunk of society is doing that, the poverty will be spread to the entire society, and it is happening in India. You are nowhere near, like, so this is something like this has to be read. Couple of solutions which for this very very important, because I am not just here to repeat the problem, I am here to solve that also. Big thanks to Akash ji, big thanks to Deshbhakt, very important. First of all, the solution which I would like to propose is brahmachari training. Do not need to be a brahmachari, do not need to but brahmachari की ट्रेनिंग ज़रूरी है, अब ज़रूरत है थोड़ी सी। Secondly, follow the principle of matravat pardareshu. बहन everybody, every woman other than me, कोई भी पर स्त्री मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर के अलावा
माता के समान है, माता ही है, बहन भी नहीं बोलेंगे। कई कल्चर्स में अक्का मतलब बहन होता है, कई कल्चर्स में अक्का मतलब माँ होता है, तो माँ ही समझा जाएगा, बहन भी नहीं, बहन जी भी नहीं, भाभी जी भी नहीं, माता जी। नो बहन जी, नो भाभी जी, नो ये, नो बौदी, ये सब नहीं, माता जी। और ये आपके कल्चर पे हेट या आपके ईगो सेंटिमेंट पे हेट नहीं है ये, और ये कोई ऐसा नहीं है हर्ट, बिकॉज अब ये इम्पॉर्टेंट है। ड्रास्टिक टाइम्स नीड ड्रास्टिक मेजर्स। थर्ड थिंग, यू नीड टू सब्लिमिनली इम्प्रूव योर सेक्युलिक एनर्जी। पहला काम, पर्पस ढूंढना शुरू करो, पैसे कमाने शुरू कर दो। एटलीस्ट इफ़ उतने डीप में भी नहीं घुसना कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या, अभी मत घुसो, एटलीस्ट उतना डीप मत जाओ। स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग मनी, लर्निंग। बच्चे हैं तो आप थोड़ा सीखें, ज़रूरी नहीं एकेडमिक, उतना एकेडमिक पे इतना प्रेशर मत फंसाओ, ज़रूरी नहीं मार्क्स लाने, बट आप सीखना शुरू करो, क्या पैसे कमाने लायक ऐसे स्किल्स सीखना शुरू करो, तभी आपकी ऊर्ध्वगति होगी। दैट इज़ वेयर यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। थोड़ा सा आप ये करना शुरू करें। Again, I'm mixing up Hindi and English, but the idea is the first step towards reformation of the Indian society is instituting brahmachari training or celibatic training. There are components to it, say like austerity, tolerance, purification, meditations, and all those things are there. Truthfulness, element of service, ये इंडिया में एक कॉमन है, कोई रीज़न था, देर वॉज अ रीज़न टिल 25 years of age brahmachari training was propagated. See, I am not somebody averse to sexuality, but at this point we need some drastic measures to drastically improve, because otherwise things like these being propagated would constitute a very bad image, like very bad reputation, and it's already happening. There's a reason Indians are being hated everywhere. There's a truth to these actions. Anybody and everybody should go through this training right now. I think I should go through this. मैं तो खैर I have done meditations and anything. I have been through some things like that, but I strongly recommend that. Second thing, the principle of Matravat Pardareshu. Any lady apart from, and if you're somebody watching this from who's not an Indian but he's watching it from some other nation, just relay this concept again and again. Indians are supposed to treat like women other than their wives and partners like mothers. You have to have a higher standard right now, maybe even temporary, but ये principle आना चाहिए. This is the only way. No sister, no dee, no nothing. No bhabhi ji, no brother, mata ji. Every other lady, even a 5-year-old kid, to be treated as mother. और ये not in like a pretentious or duplicitous manner, actually from within. It should be instituted within. Matravat pardareshu. Third thing, start calling out. Men and women alike. Start calling out this nuisance. Every time. Start calling it out. But yes, give people space to reform also, but yes, start calling this thing out. चौथी चीज़, एक मैं ना अब एक दूसरा पार्ट जो है उस वीडियो में बढ़िया मेंशन्ड है यार, स्टार्ट बिहेविंग थोड़ा डिसेंटली। ये आपको हर जगह से जो आपने स्ट्रीट फूड को ग्लोरीफाई कर रखा है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बैठ जाएंगे चौकड़ी मार के एक पब्लिक स्पेस में, पेपर बिछा रखे हैं, खाने बिछा रखे हैं, और ये इंडिया में भी है। फॉर सम रीज़न सम कम्युनिटीज़ पूरे हाईवे ब्लॉक कर करके सारी गाड़ियाँ खड़ी कर करके सड़कों पे बैठ के खाना खा रहे हैं। क्यों? सी, अब मैं किसी के फाइनेंशियल सिचुएशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मे बी उस सामर्थ्य की पता, बट फिर भी वो भी इंसान ऐसे नहीं खाते, मतलब सॉरी टू से, उनको भी मैं नहीं बोला, बट अगर आपके पास सामर्थ्य है, इफ़ यू आर अर्निंग अ लिटिल बिट मोर देन मिडिल क्लास, आप डोंट नीड टू स्टार्ट अवॉइडिंग दिस। ये जो
glorified versions of street food in Bollywood. Please stop doing that. That's nuisance. There's no, and yes, जब भी आप कहीं जाएं या फिर इफ़ यू आर समवेयर, इफ़ यू वांट टू हैव अ सेलिब्रेशन, हु इज देयर नो denying to celebration, just shell out some money, book a hall and do bhangra as much within the legal norms of that country, and do as much bhangra as you want with the legal norms of the sound decibel, the timing, the place. Book a proper hall, like maintain the proper sanity, क्योंकि important है वो rules किसी वजह से हैं. ये इंडिया में एटीट्यूड है कि आपको दिल्ली में भी लाइक इफ़ देयर इज़ अ नॉर्म कमिंग इन पटाखे ना हम तो ज़बरदस्ती तोड़ेंगे. फॉर सम रीज़न दैट सैडिस्टिक प्लेजर इज़ देयर. स्टॉप गिविंग इन टू दोज टेंडेंसीज. कुछ भला नहीं हो रहा आपका, ना उनका ना आपका. पैसा खर्च करें हर जगह. ये अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं तो डॉलर्स में खर्च करने की वो भी होनी चाहिए ना. ये उन्हीं हिंदुस्तानी भाइयों से कह रहा हूँ जो कि इंडिया के बाहर जाके ये बदमाशियाँ कर रहे हैं. क्यों एक ग्रुप में जाके आपको सब जगह, एक वो वीडियो था कि गरबा करना, क्यों पूरा एक हॉल बुक करिए, डांस ग्रुप करिए, पूरा बुक करिए, गरबा ही करना है आपको. ये क्या है मतलब, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस. क्योंकि अगर आपके यहाँ एक शो आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें वो लोग किसी भी जगह पे जाके कुछ भी शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज़ द पॉइंट. एक लाइक आई वांट टू पुट आउट दिस टू मीडिया कम्युनिटीज़ कि पुटिंग आउट अ डिस्क्लेमर and saying that ki this has no influence or aise na, that doesn't help. You are embedding stupid ideas in people's subconscious. I mean, there is this one comedian guy who had this nuisance joke, 6,000, and the effect of that was there was one more YouTuber who came to India with his Russian partner, like they were married. उसकी वाइफ को ये 6,000 करके बकवास करने लग गए ये लोग. दिस इज न्यूसेंस. इंडियन ये क्रिएटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. यू कैन अवॉइड द लीगल लाइबिलिटीज, यू कैन नॉट अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टैंड अप कॉमेडी किसी भी तरह का ऐसा क्रिएटर है, प्लीज़ मत देखिए उसकी वीडियोस. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. नॉर्मली इवन आई एम अ कैपिटलिस्ट बट दिस इज नॉट डन. मातृवत परदारेशु इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. प्लीज़ स्टार्ट रिस्पेक्टिंग. ये हमें मतलब आफ्टर लाइक ऐसा है ना कि थोड़ा अपने आप को रिफॉर्म कर दो, आपकी लाइफ ज़रूर बेटर हो जाएगी. मेन की और लेडीज़ को एक सेफ स्पेस देना पड़ेगा. ये इंडिया की ये, क्योंकि पॉइंट इज ऐसा नहीं है कि अदर कंट्रीज डोंट हैव क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. इट इज़ जस्ट एक्सेंचुएटेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ, बट देयर आर अदर्स अंडरलाइंग फैक्टर्स इन द सोसाइटी. So start following these three, at least these three things. It's coming out of great concern from my heart. Please इसे ध्यान से फॉलो करिए और थोड़ा सा ना एंड स्टार्ट बिहेविंग थोड़ा एथिकली ऑल्सो. ये ना कि मतलब मैं एक शॉप में से, देयर वाज अ लेडी शॉप में जाके शी इज़ पिकिंग अप और फिर बाद में बोले कि ये माइंड सेट है ना कि हम रोड पे चलेंगे राइट साइड पे 5 मिनट का कट लेके, अगर पुलिस वाले ने देखा 200-500 रुपये दे के छूट जाएंगे. ये माइंडसेट हर जगह नहीं वर्क करता. ये अच्छा नहीं है. आप उस राइट साइड में जाके आपका अंतिम स्वाहा हो सकता है किसी भी दिन. आप जा रहे हैं राइट साइड क्योंकि आप जा रहे हैं. इंडिया इज़ अ लेफ्ट ड्रिवन कंट्री. लेफ्ट में चलाओ, क्या ही हो जाएगा. ये तो इंडिया में अर्बन मिसमैनेजमेंट इतना है कि आपको ट्रैफिक इतना ज़्यादा पड़ता है. तो थोड़ा सोच समझ के निकला करें. थोड़ा अब अगर आप फिर अपने लीडर से क्वेश्चन करें ना कि इतना अर्बन मिसमैनेजमेंट क्यों है. पॉपुलेशन इज़ नॉट इंडियाज़ प्रॉब्लम. पॉपुलेशन डेंसिटी सिंगापुर में बहुत ज़्यादा है, अर्बन मिसमैनेजमेंट नहीं. उधर अर्बन कितना अच्छा मैनेजमेंट है. पॉपुलेशन इज लो, पॉपुलेशन होने से भी कुछ नहीं होगा. काफ़ी जगह पे वेरी लो पॉपुलेशन बट वेरी बैड अर्बन मिसमैनेजमेंट. इट्स अर्बन मिसमैनेजमेंट. इट्स एंड देयर इज ओनली टू. अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी सेंसिटिव नहीं हो रहा, बट इट इज़ ओनली द फॉल्ट ऑफ लीडर्स. नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी, नोबडी इज इम्प्रूविंग इट बिकॉज यू आर नॉट क्वेश्चनिंग इट. अर्बन मिसमैनेजमेंट पे मुद्दे बनाओ आप. वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4 चीज़ें फॉलो करें. आप कम से कम पैसे कमाने कुछ पर्पस अपनी लाइफ में लाना शुरू करें. फ़ोन को रखें, सारे फालतू के सब्सक्रिप्शंस बंद करें एंड स्टार्ट सीइंग मदर्स रिस्पेक्टफुली. ये करना पड़ेगा. एक अगर
इफ़ द पेंडुलम हैज़ गॉन दिस वे, इस तरफ खींचने के लाना पड़ेगा, थोड़ा इधर जाएगा वो. यू हैव टू बी वेरी मतलब वेरी वेरी ऑनेस्ट. एंड दिस इज़ अ चाणक्य अगेन. ये जो मातृवत परदारेशु, ये भी मैंने चाणक्य नहीं थे. So, भाई साहब ने प्रॉब्लम भी बताया तो सोल्यूशन भी बताए हैं. रिस्पेक्ट वुमन लाइक दैट प्लीज़. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. ये हर एक के साथ, इसमें मैं कोई अपना एजेंडा नहीं बना रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा मुझे कुछ, ये कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है कि चाणक्य जी ने आके मुझे स्पॉन्सरशिप दिया कि भैया, ऐसा नहीं है. देर इज़ नो स्पॉन्सरशिप अराउंड दिस वीडियो, देर इज़ नो इंटेंशन टू सेल एनीथिंग. मेरा कोई और काम मत देखिए, ये ज़रूर शेयर करिए. सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़. बाकी बढ़ाइए सब्सक्राइबर्स ताकि यूट्यूब स्टार्ट्स प्रोमोटिंग दिस थिंग. This is very important. It's a high time because I cannot see people who are genuine and who are like respectful and are struggling in the other nations because the actions of these nincompoops, actions of these buffoons are actually causing. And it's not just the harassing actions. It's also this like norm breaking. Don't. इफ़ यू वॉन्ट टू फायर, देयर इज़ अ रीज़न वो क्रैकर्स वो ना ये इंडिया में है. यू टेक प्रॉपर परमिशन, यू टेक प्रॉपर एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द नोज. इफ द अथॉरिटी सेज नो यू कैनॉट प्ले म्यूजिक, डोंट. ये इंडिया में भी करना चाहिए. वी शुड डू ऑल ऑफ दिस इन इंडिया. इफ़ देर इज़ अ नॉर्म कि रात के डीजे 9 बजे 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे तो नहीं बजने चाहिए. ये 11 बजे 200 हज़ार रुपये कोई आ जाए, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर ले 9, यार तेरा एक ही हैंडल होगा, इसे 9 बजे बंद हो जाएगा डीजे. और डीजे की भी एक लिमिट होगी. थोड़ा तहजीब से रहना शुरू कर दो. आई थिंक एटिकेट की ट्रेनिंग है ना, एक और है कि एटिकेट्स को नहीं मानना, थोड़ा सा एटिकेट्स मानना शुरू कर दो प्लीज़ यार, थोड़ा सा. प्लीज़ शेयर दिस अक्रॉस. स्टार्ट दिस. I hope this helps.